परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। परम पूजनीय 13वें सोना रिम्पोचे के कठिन प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन के इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भगवान बुद्ध के ज्ञान, दर्शन और बौद्ध धर्म को। हम आपको बता दें, हर साल दार्जिलिंग में ऑल इंडिया तमांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों के लोगों को बुद्ध ज्ञान से परिचय कराते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके के लोगों को धर्म का सही अर्थ भी समझाते हैं। आज से हम आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग में आयोजित ऑल इंडिया तमांग बौद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे इन कलाकारों ने कड़ी मेहनत करके महीनों से इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां की हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रमों की मुख्य झलकियां।
कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaste and Tashi Dilek. My name is Tenzin Yankee. I'm Tibetan astrologer from Minzikhang, Dharamshala. I'm here to give daily prediction for the month of November, December and January. 11 November, Thursday, 6th day of the 10th lunar month. Elemental combination is water wind, inauspicious combination, and this brings disharmony and separates friends and relatives. Therefore, don't believe in any rumors and deal well with your friends and relatives in order to avoid breakups. Today, sex is also there, so avoid performing and undergoing surgery and thoracic therapies. Particularly on this day, refrain from doing construction, renovation and moving of houses. Bumtong or empty waste is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing west. Friday, 6th day of the 10th lunar month. 6th lunar day is double here. The elemental combination is earth water, and from 9 a.m. the elemental combination changes to earth and earth. The both elemental combination are good. This elemental combination has wish fulfilling energy that fulfills all the wishes. Lay foundation or build and do work related with the land. Humdong or empty waste is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing west. Favorable for raising prayer or Lungta flag at 6 a.m. and 9 a.m. 13 November, Saturday, 7th day of the 10th lunar month. The elemental combination is earth and earth. This elemental combination has wish fulfilling energy that fulfills all the wishes. Build or lay foundation and do work related with the land. Also great for long-term activities. Particularly on this day, you are suggested to refrain from doing engagement and marriage because the day is Bhagne Namgo. BT and sexy are also there, so avoid undergoing and performing thoracic and surgery. Bumtong or empty waste is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing west. Thank you and see you tomorrow at same time. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। और उसके साथ साथ आपको तारा देवी के विषय में भी थोड़ा सा आपको जानकारी का आवश्यकता है। जिस देवी के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्राप्ति करना है, अगर उस देवी के बारे में अगर आपको कोई जानकारी ना रहे तो वो भी उचित नहीं है, सही नहीं है। तो इसीलिए उस देवी के विषय में थोड़ा सा जानकारी आप में होना चाहिए। अब उसमें ग्रंथ के हिसाब से अगर कहा जाए तो तारा में बहुत सारे ताराएं हैं, 21 तारा का भी बात करते हैं, और अलग अलग तारा देवी का अलग अलग विशेषता है। अब वो हमारे समय भी के अभाव भी है और समझने में भी कठिनाई हो सकते हैं, तो इसलिए
ऐसा स्पष्ट रूप से हम लोग चर्चा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर संक्षेप में अगर आपको सोचना है तो मैं संक्षेप में एक बात आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ। केवल आप इतना समझ लीजिए कि सर्व बुद्ध या सारा बुद्धा जितने पे हैं उनके अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग फॉर्म में, भिन्न भिन्न फॉर्म में भगवान के रूप धारण किया हुआ है। उसमें से एक सिंपल वे ऑफ थिंकिंग ऐसा अगर सोचें तो तारा देवी जी को एक फीमेल बुद्धा भी आप मान सकते हैं, फीमेल फॉर्म ऑफ बुद्धा, यानी कि स्त्री के रूप में एक बुद्धा। और जो भी भगवान के रूप इस तरह से प्रकट होता है उसका एक एक महत्वपूर्ण एक मतलब होता है, मीनिंग, अर्थ होता है। तो इसलिए मैं 2-3 भगवान के बारे में आपके सामने में बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इनको जम्बेयांग के ngak ओम आरापसन आदि उनको सिखाया जाता है और उनको उसको जप करने के लिए हम कहते हैं। तो हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं उसको जप करने से उनके विजडम यानी कि उनके दिमाग को तेज होगा, क्योंकि जाम्बेयांग, जिसको जाम्बेयांग कहलाते हैं, वो मंजूश्री पे हम कह सकते हैं संस्कृत में। तो मंजूश्री को हम गॉड ऑफ नॉलेज के रूप में मानता है, यानी कि ज्ञान के भगवान। तो ज्ञान के भगवान के रूप में जब बुद्ध जी के क्या कहेंगे, भगवान के रूप धारण किया है तो जाम्बेयांग कहा जा सकता है। और जाम्बेयांग और भगवान बुद्ध में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अगर आप भगवान बुद्ध को अलग मानने लगे, जाम्बेयांग को अलग मानने लगे, तो ये गलत होगा। जैसे कि हमारे घर में कभी हम भाई के रूप धारण करके लोगों की सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, और हम जैसे कि घर के जो माता है वो अपने पति के साथ एक पति के रूप से उनको सेवा करते हैं, बच्चे को एक माँ के रूप से उसको सेवा करते हैं। लेकिन वो बच्चे को जो माँ के रूप से सेवा देने वाले स्त्री और पति को पति देव के नाम से जो सेवा देने वाले जो आपके माँ है, वो दो में भिन्नता नहीं है, एक ही है इंसान। लेकिन अलग अलग कर्मों के कारण अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों पर उसका आवश्यकता होता है अलग तरीके से उनकी सेवा की जाए और अलग तरीके से उनके कल्याण की जाए और उनके ड्यूटीज या उनका अलग हो जाता है। उसी तरह से फिर हमारे जैसे चंद्रेश जी का आप सब ओम मनी पे में ओम मनी जप करते हैं, तो चंद्रेश जी में छातों चेंतों 1000 आर्म्स 1000 आंख वाले भी होता है और छाक शिपा भी है, बहुत कुछ है। लेकिन चंद्रेश जी का नाम संस्कृत में अवलोकितेश्वरा कहते हैं। तो अवलोकितेश्वरा को फिर कैसे मानना है, आपको ये भी समझना है। डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने का आवश्यकता नहीं, केवल आप इतना मान लो कि भगवान बुद्ध का एक रूप जो भगवान के रूप में आए हैं और वो
उसका लय माने उसका क्या कहेंगे इंट्रिकेशंस या उनका गॉड ऑफ कंपैशन के रूप में, यानी कि दया के भगवान के रूप में, करुणा के भगवान के रूप में। तो करुणा के भगवान के रूप में रूप धारण होता है तो हम चेनेसी बोल सकता है। अब उसी तरह से ड्रामा का जब तारा का बात करते हैं तो केवल आप इतना समझ लीजिए कि ठिनले लिखा लो, कर्मनिया जिसको हम ठिनले कहते हैं। तो कर्मनिया के रूप में, और वो भी स्त्री की रूप धारण करके जो आपके सामने में प्रकट हुआ है, उसको आप तारा देवी मान सकते हैं। तो केवल इतना ही आप दिमाग में रख लीजिएगा, और उनका वास्तविकता में वही है भगवान बुद्ध जी, उनसे भिन्न नहीं है। तो ऐसा समझ करके, लेकिन अलग अलग कर्मों के कारण जैसे अलग अलग रूप धारण होता है। तो इसीलिए जब सफ़ेद तारा जी का अगर आप प्रैक्टिस करेगा, मंत्र जप करेंगे और उनके अभिषेक करेगा, तो वो विशेष रूप से आपके आयु के लिए और आयु का सफलता के लिए, आयु का बीच में कोई बाधाएं को दूर होने में, संकट को दूर होने में, ये सब में उनके विशेषता बताए जाते हैं। तो इसीलिए अक्सर हमारे सेवांग करते हैं तो सफ़ेद तारा के ड्रॉगर के माध्यम से अधिकतर हमारे गुरुओं ने वही पालन करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों का यहाँ में भी सफ़ेद तारा के माध्यम से आपको आशीर्वाद करना है।